السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس فیس بک لائیو میں ہمارے ساتھ ہیں فضیلت الشیخ ابرار احمد مدنی حفظہ اللہ، جو ہدایت دعوت سینٹر میں دعوتی فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے دوسرے فاضل دوست ہیں حافظ مت اللہ سلفی صاحب، جو زہران ایئر بیس میں دعوتی و تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشائخ کے جہود کو قبول فرمائے اور شرف قبولیت بخشے اور اخلاص عطا فرمائے۔ آج ہم لوگ کہیں آئے ہوئے تھے ٹہلنے کے لیے، ایک تفریحی پروگرام تھا ہم لوگوں کا، تو مشائخ سے میں نے گزارش کی کہ کچھ دعوت کا کام ہو جائے، اور مشائخ نے اسے قبول کیا۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے ہم لوگ زوم پر تھے، اور اس کے اندر تقریباً کچھ 25 سے 30 لوگ تھے جو کلاس میں تھے۔ اس کے بعد ہم نے سوچا کہ منظر اچھا ہے اور موسم بھی اچھا ہے، اور اس منظر کو کیمرے میں کیپچر کر لیا جائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اسے دیکھ تو ضرور رہے ہیں، لیکن اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ اس درس کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اور جیسا کہ ہم سارے لوگ جان رہے ہیں کہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں دنیا کی سب سے عظیم ہستی اس دنیا کے اندر تشریف لائی تھی، جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات بھی ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے دعوتی مشن میں لوگوں کو توحید کی طرف بلایا ہے، وہیں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے ڈرایا بھی ہے، اور یہ فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد ومن عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یعنی وہ چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مخالف ہیں، وہ چیزیں ریجیکٹڈ ہیں، غیر مقبول ہیں، مردود ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ایک کثیر تعداد میں لوگ بدعتوں کے اندر ملوث ہیں۔ میں بہت زیادہ طویل تو نہیں کروں گا اپنی اس تمہید کو۔ ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ ابرار احمد مدنی حفظہ اللہ ہیں اور شیخ مت اللہ سلفی صاحب ہیں۔ اب میں آپ مشائخ سے کہوں گا کہ آپ شروعات کریں اور لوگوں کو بتائیں مولد کے تعلق سے کہ مولد کیا ہے، اس کا منانا شرعی نقطہ نظر سے اس کا مسئلہ کیا ہے، وہ لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم۔ نام شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آپ کے ٹائم لائن پہ جائے گا۔ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، رواه البخاری ومسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، بھائیوں اور دوستوں، اور دیگر تمام سامعین و سامعات، ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر مذکور ایک حدیث جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ روایت میں نے پڑھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خصلتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جس بھی شخص کے اندر یہ 3 خصلتیں، یہ 3 خوبیاں اور 3 صفات پائی جائیں گی، ایسا شخص ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت اور مٹھاس پا سکتا ہے۔ گویا کہ ایمان کی حلاوت، لذت، مٹھاس کو پانا اگر ہے تو ان 3 چیزوں کا اپنے آپ میں ان 3 چیزوں کو اپنے آپ میں پرونا بہت ضروری ہوگا۔ اب میں سستی طور پر ان 3 چیزوں کا تذکرہ کر دوں، اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی گفتگو عید میلاد النبی کے حوالے سے صرف ایک نقطہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ یہ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال دستور بھی ہے، موقع بھی ہے، ضرورت بھی ہے، تو اس ناحیے سے صرف ایک نقطہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں یہ ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس شخص کے اندر 3 خوبیاں اور صفات پائی جائیں
وہ شخص در حقیقت ایمان کی مٹھاس پا سکتا ہے۔ نمبر 1 ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر کے ہو، یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں کسی اور کی محبت ہرگز نہ پائی جائے۔ اور دوسری بات یہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسان کسی انسان سے محبت کرے تو محبت کی بنیاد صرف اور صرف رضائے الہی ہو، یعنی اللہ رب العزت کی خاطر کسی سے محبت کرے، دنیاوی مفاد کی وجہ سے کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کا معیار یہ ہو کہ ایک اللہ کا بندہ ہے اور پھر اس کی یعنی دینی پس منظر میں محبت ایک دوسرے سے ہونی چاہیے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کفر میں واپس لوٹنے کو وہ ایسے ہی ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ 3 خوبیاں بیان کی گئی ہیں، 3 خوبیاں جس شخص کے اندر بھی پائی جائیں گی در حقیقت وہ شخص ایمان کی مٹھاس کو پا سکتا ہے۔ یہاں جو پہلا نقطہ ہے، پہلی خوبی اور صفت ہے وہ یہ کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ایک انسان کے دل میں سب سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیں میرے بھائیو دوستو، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ بات ہے میرا خیال یہ ہے کہ جن کو بنیادی تعلیم ہوگی وہ بھی اس بات کو جانتے ہوں گے کہ مختلف مہینوں کی شریعت مطہرہ کے اندر فضیلت آئی ہے، تو مستقل طور پر جن مہینوں کی فضیلت و اہمیت اور تقدس کی بات کی گئی ہے شریعت مطہرہ کے اندر، وہ مہینے ایک تو محرم کا مہینہ ہے، اور اس سے پہلے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور پھر رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت کے بیان کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جب پڑھیں گے کتاب و سنت کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رمضان المبارک کے مہینے کو بھی بڑا عظیم اور مبارک مہینہ گردانا گیا ہے اور شمار کیا گیا ہے۔ ان 5 مہینوں کے علاوہ خصوصاً مستقل طور پر کسی مہینے کی فضیلت کو یا اس کی اہمیت کو اجاگر نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ دیگر مہینوں میں سے کچھ ایام ہیں، کچھ گھڑیاں ہیں جو جس میں فضیلت مانا جا سکتا ہے یا اجاگر ہو سکتی ہے۔ بہرحال ربیع الاول کا مہینہ مستقل طور پر اس انداز سے اس کی فضیلت و اہمیت کو اجاگر نہیں کیا گیا ہے جس طرح سے دیگر مہینوں کی فضیلت و اہمیت کو اجاگر شریعت نے کیا ہے۔ اور میرے بھائی دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ترین ہستی کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ واقعتاً اس پر جتنی بھی خوشی انسان ایک مسلمان جتنا بھی خوش ہو کم ہے، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ان تمام چیزوں سے محبت کرنا اور اس پر توجہ دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں الگ الگ ہیں، اور ساری چیزوں کو ہمیں الگ انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خوش ہونا، خوشی منانا، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ میں ان تمام چیزوں میں نہیں جانا چاہتا، البتہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، ہمیں محبت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ رب العزت کی محبت کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ کامیابی کی علامت ہے اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کیا کہنا، یہ ایک ایسا مسلمہ اصول ہے، ایک ایسی مسلمہ بات ہے جس پر کسی بھی شخص کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام مخلوقات سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر کے ہونی چاہیے۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا کہی جا سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے۔ بہرحال یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی حلاوت، مٹھاس اور چاشنی کے پانے کا باعث ذریعہ اور سبب ہے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو یقیناً یہ اس کے ایمان کے مٹھاس کی علامت مانی جائے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بنیاد بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں غلو کرنا، مبالغہ آرائی سے کام لینا یا دروغ گوئی کرنا، ان تمام چیزوں کی
गुंजाइश नहीं दी जा सकती। मेरे भाई दोस्तों, मैं इसी नुक्ते पर गुफ्तगू करना चाहूँगा कि आज हम में से बहुत सारे हमारे भाई हैं जो जाने अनजाने में या इसी तरह से शऊरी गैर शऊरी तौर पर या लोगों के की तरफ से ऐसी चिकनी चपड़ी बातों की बुनियाद पर वो कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं, ऐसी बातें कह जाते हैं या ऐसे औसाफ का तज़किरा करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जिन औसाफ का ना तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुस्तफ़ा में तज़किरा किया है और ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन औसाफ का उस बात तज़किरा किया है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में गुलू करने से, मुबालगा आराई करने से, इसी तरह से दरोग गोई करने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना किया है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम इन्नमा अना अब्दुन फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में फरमा रहे हैं कि देखो मेरे बारे में गुलू से काम न लेना, मेरे दर्जे को, मेरे मर्तबे को उतना न बढ़ाना जो दर्जा और मर्तबा मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता नहीं किया गया है, यानी जो मेरी हैसियत है उस हैसियत से मुझे आगे मत बढ़ाना, मुबालगा आराई से काम न लेना। क्यों? इसलिए कि इय्याकुमुल गुलू फिद्दीन, इय्याकुमुल गुलू फ़इन्नमा अहलक मन कान क़ब्लकुमुल गुलू, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलू करने से मना किया है, उससे बचने की आपने बड़ी सख्त तलकीन की है, ताकीद की है, क्योंकि ये गुलू ही वो चीज़ है जो इंसान को हिलाकत के रास्ते को हमवार करती है। गोया कि आप यूँ कह सकते हैं कि हिलाकत व बर्बादी और गुमराही का पहला जीना मुबालगा आराई है, और इसी तरह से अपने महबूब और अपने महबूब की अकीदत में आकर के, मोहब्बत में आकर के, मोहब्बत की आड़ लेकर के, मोहब्बत को बुनियाद बना करके मुबालगा आराई से काम लेना, गुलू से काम लेना, उसकी सिफ़ात को बढ़ा करके पेश करना, ये गुमराही का, हिलाकत व बर्बादी का पहला जीना और पहला सबब है। तो इसलिए भी, और इससे पहले पिछली उम्मतों को अगर आप देखेंगे तो पिछली उम्मतों की हिलाकत और बर्बादी का बुनियादी सबब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलू ही को बतलाया है। तो इसलिए उम्मत मुस्लिमा के तमाम अफराद की ज़िम्मेदारी बनती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से, आपकी तारीफ़ और आपके औसाफ के ताल्लुक़ से हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, उन सिफ़ात को, उन खूबियों का तज़किरा नहीं करना चाहिए जिन सिफ़ात और जिन खूबियों का तज़किरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक के सिलसिले में वज़ाहत नहीं किया है। बल्कि अफसोस तो वहाँ होता है कि बाद लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो सिफ़ात और वो खूबियाँ तक बयान कर देते हैं जो सिफ़ात और जो खूबियाँ ख़ास हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। ये सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात है, और ये अमल अगर इस अमल की गहराई में जाए तो यकीनन ये अमल शिर्क करार पाता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुस्तफ़ा के अंदर शिर्क के ताल्लुक़ से बड़ी उसकी संगीनी को, उसकी तबाही को और उसकी हलाकत को और उसकी कबाहत व शनाअत को बड़े वाज़ेह अंदाज में उजागर किया है, ताकि उम्मत मुस्लिमा अपने आप को इस संगीनी से बचा सके। तो मैं ये कह रहा था कि अफसोस तो यह है कि मोहब्बत की आड़ में, मोहब्बत की बुनियाद पर और अक़ीदत की आड़ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो सिफ़ात बयान की जाती हैं जो सिफ़ात ख़ास हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। और इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में बड़े वाज़ेह अंदाज में यह अपनी उम्मत को नसीहत की और वसीयत की कि देखो मेरे उम्मतियों, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, जिस तरह से ईसाइयों ने हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनके बारे में गुलू से काम लिया, कभी तो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शरीक और पार्टनर करार दे दिया, कभी तीन में का एक करार दिया, और कभी उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उलूही सिफ़ात से मुत्तसिफ़ कर दिया। तो कहीं देखो ये गलतियाँ और ये ख़ताएँ और ये गुमराही के दरवाज़े तुम खोल करके उसमें दाखिल ना हो जाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की इस संगीनी की तरफ बड़े वाज़ेह अंदाज में उजागर किया और बताया, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम की तरह से, ईसाइयों की तरह से जिस तरह से उन्होंने ईसा इब्न मरियम के बारे में गुलू से काम लिया, तुम मेरे बारे में गुलू से काम मत लेना, मुबालगा आराई या दरोग गोई से
इस्तराब करना और एतराज़ करना। इन्नमा अना अब्दुल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हैसियत बयान की है कि दर हकीकत अगर हकीकत देखा जाए तो मेरी हकीकत ये है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का ग़ुलाम हूँ। इन्नमा अना अब्दुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तवाज़ो और आपकी ये खाकसारी, और यकीनन अगर आप गहराई के अंदर जाएँ, गहराई के अंदर जाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा मकाम अब्दियत एक ऐसा मकाम है और एक ऐसा सुनहरी बाब है जो एक मुस्तकिल मज़मून है। मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन बहरहाल ये जो मकाम अब्दियत है बहुत सुनहरी बाब है और बहुत सुनहरी मकाम है। और इसके सुनहरा होने का अगर अंदाज़ा करना हो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर और ख़ास मौक़े पर जब खिताब किया, जब तज़किरा किया तो अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जैसा कि खुद अल्लाह फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिही नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही, अब्द का तज़किरा किया। और जब इसरा और मेराज का मौका है तो अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। इसी तरह से दीगर मौक़े पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया या तज़किरा किया प्यार के अंदाज़ में, मोहब्बत के अंदाज़ में। और इसी तरह से किसी ख़ास मौके पर, उस ख़ास मौके में जब तज़किरा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द से, तो आपका तज़किरा अब्द से किया। ये अब्द के साथ तज़किरा करना ये मकाम अब्दियत की अहमियत को बड़े वाज़ेह अंदाज़ में उजागर करता है। फ़इन्नमा, इसका मतलब बता दिया अब्दियत का। अब्द मतलब ये ग़ुलाम और जी। तो बात मैं कर रहा था कि इन्नमा अना अब्दुल, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर फिर आगे उसकी वजाहत करते हुए अपने आप के बारे में उसको बयान किया। फ़क़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलुहु, तो तुम मुझे अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल ही कहो। यानी देखें, और वैसे भी जब हम पढ़ते हैं जो कलमा वगैरह में तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वही आगे पढ़ते हैं व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप इस जुमले में एक तरतीब देखें तो आपको यकीनन अब्दियत और रसालत, इन दोनों चीज़ों की जो तरतीब जो जिक्र की गई है इस कलमे में, यकीनन अब्दियत के मकाम की जो अहमियत है वो उजागर होती है और खुल के सामने आती है। अब्दुहु का लफ्ज़ रसूलुहु से पहले तज़किरा किया गया है। ये भी एक बहुत वाज़ेह इशारा है और यकीनन ये चीज़ समझने की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल भी हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। आप अब्द भी हैं, रसूल भी हैं। तो कहने की बात यह है कि इस हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ताल्लुक़ से खुसूसन गुलू करने से रोका है। अब यहाँ एक नुक्ता समझ में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ताल्लुक़ से अगर गुलू से रोका गया हो तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे जितनी शख्सियत हो सकती है वो कितनी मोतबर क्यों ना हो और कितनी अजीम क्यों ना हो, उनके बारे में गुलू फिर रवा तो हो ही नहीं सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अजीज़ और अजीम और अहमियत की हामिल हस्ती हो ही नहीं सकती। अब जब सबसे अजीम हस्ती, सबसे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हस्ती, सबसे आला व अशरफ हस्ती के ताल्लुक़ से अगर गुलू करने से, मुबालगा आराई से और इसी तरह से उनके दर्जात को बढ़ाने से मना कर दिया जाए तो फिर कौन सी ऐसी हस्ती बचती है जिसके बारे में गुलू से एक आदमी काम ले सकता है। तो यहीं से ये बात समझ में आती है कि किसी भी शख्स के बारे में गुलू से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुलू की जो ख़तरात हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। मिलादुन्नबी में तकरीबन ऐसी जी, और मिलादुन्नबी का जिसको अगर आप मिलादुन्नबी का पूरा निचोड़ देखें, पूरे निचोड़ को अगर देखेंगे तो आपको यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम पर आपके बारे में गुलू करने की वजह से ये पूरी ईद मिलादुन्नबी के अलिफ से लेकर के बड़िए तक के पूरी चीज़ को अगर निचोड़ निकालें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की आड़ में और आपकी अक़ीदत की आड़ में गुलू करते हुए ये पूरी दुकान सजती है। अगर गुलू निकाल दिया जाए तो पूरी दुकान ऑटोमेटिकली तौर पर बैठ जाएगी। इसीलिए मैंने इस नुक्ते पर खुसूसन गुफ्तगू करने की कोशिश की है। अल्लाह हमें सवारी आती है जी, इस तरह हाजिरी होती है। मतलब यकीनन अगर आप यूँ कह सकते हैं कि इस ईद मिलादुन्नबी के जश्न के ताल्लुक़ से कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो वाज़ेह तौर पर शिर्क अकबर का मुर्तकिब इंसान हो सकता है। और शिर्क आज असग़र। शेख, आज देखें आप कि इसमें मतलब यह है कि
दूसरी कौमों की मुशाबहत जो है ना, जी इस हद तक जो है इनके अंदर आ चुकी है कि आज जो पहले जो दूसरे गैर मुस्लिम कौम है जिस तरह से वो ईद मिलाद मनाती थी अपने जी हाँ, देवी वो देवताओं क्रिसमस की, डे वगैरह है और मतलब दीगर चीज़ें ये हैं। बाजा है और इस तरह से जो है ना, बहुत सारे डीजे हैं, गाना है, औरतों की यानी इख्तिलात, मर्द मतलब ये औरतों कि का, हाँ जी जी बेशुमार जी जी जो है मफासिद है, उसके मददात अलावा है। शेख ये जो नाद वगैरह पढ़ते हैं आप देखें पूरे शिरकिया होते हैं। जी 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 ये जी कहना जी, वही जो नात मुस्तवी भी तो, अर्श था और खुदा होकर उतर पड़ा है मतलब मदीने ये मुस्तफ़ा इसको होकर। एक ऐसी रंगीन महफिल में तब्दील कर दिया गया है जिस नबी ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया, जिस नबी ने म्यूजिक बाजा और इस किस्म की चीज़ों से सख्ती से मना मतलब ये किया। सब गुनाह कबीरा है जी, तो आज आप उसकी मोहब्बत में उसका आप ईद मिलाद मनाते हो ऐसे नबी का, और उधर एक साइड में इतनी बड़ी नाफरमानी। मैं ठीक है, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, वो तो गलत है, मिलाद ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके साथ साथ कितनी बड़ी जुरात है कि उसी नबी की सरी खुल्लम खुल्ला इतनी बड़ी मुखालफत हो रही है। और उसमें और सबसे ज़्यादा कहमी मोहब्बत हमारे अंदर। अरे ये अजीब मोहब्बत है, ये मैं तो समझता जी हूँ जी जी ये मोहब्बत नहीं है, अदावत की खुली दलील है। जी जी ये इसको मोहब्बत एक देखिए, मोहब्बत का मतलब ये होता है, जाहिर सी बात है, मोहब्बत एक कल्बी मैलान का नाम है। जी जी और मोहब्बत में असल में होता क्या है कि एक इंसान जिससे मोहब्बत करता है, यानी अपने महबूब की अदाओं को वो ढूंढता है कि महबूब क्या पसंद करता है। उसकी बात मानता जी, है। तो अब वो ढूंढता है कि उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी जी, लगती जी। है, और क्या चीज़ करें तो वो खुश होगा। जी, तो उसकी जी। खुशियाँ, उसके अदाएँ, उन तमाम चीज़ों को ढूंढ कर वो आदमी करना चाहता है जी जी ताकि वो अल्लाह खुश हो सके। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आपने बहुत अच्छी बात कही दलाइल की रोशनी में और कुरान और हदीस के ताल्लुक से आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम उबूदियत और रिसालत को बड़े अच्छे अंदाज में साबित किया, और जो गुलू हो रहा है आपके ताल्लुक अब से, पूरे बुनियाद गुलू है ये, अगर गुलू गुलू, निकाल जी दिया जी जाए जी, तो और बता मना किया गया उससे, जी हाँ। गुलू से कितना रोका गया, क्योंकि गुलू एक ऐसी चीज़ है कि आदमी वहाँ समझ नहीं पाता, जी जी है ना। जज़ाकल्लाह खैर। मैं थोड़ा अकली तौर पर यहाँ जो कुछ लोग ये दलील देते हैं, जैसे इसमें से एक शुबहा इनका है जो ये लोग मनाते हैं, मैं उसमें नकली दलीलों में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमेशा आप लोग सुनते रहते हैं। जी, असल में यहाँ एक अकली चीज़ ये दलील है ज़रूर है। जी कि ये एक आदत है, इबादत नहीं। हमें क्यों रोकते हो भाई? ये एक आदत है, मतलब इकट्ठा हुए और शेर पढ़ लिया, है ना, कुछ सीरत बयान कर दिए। ये इबादत थोड़ी है कि हम इस तरह से कहीं इबादत कर रहे हैं, ये शुबहा डाला जाता है, समझ रहे हैं ना। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसका मैं जवाब दे दूँ, फिर आप ऐड कीजिएगा इसमें कुछ। तो मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़ा शुबहा सामने आता है, अगर आप उनको रोकेंगे तो ऐसे लोग कहते हैं कि ये आदत है ना, इबादत नहीं है। कर रहा है आदमी ऐसे ही, इकट्ठा हुए कर लिए, जन्मदिन मना लिए, हो गया। तो इसका जवाब है हमारे बाद मशाइख ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, मैं उसी रोशनी में पढ़ना चाहता हूँ। तो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मुगालता है और हकीकत से और वाक़े से भागने का एक रास्ता इन्होंने अख्तियार किया। यकीनन यकीनन समझ रहे हैं ना, शेयर करो पहले। यकीनन। हकीकत से ये हुरूब है, और जो वाकई चीज़ है उससे भागने की बहुत बड़ी प्लानिंग है इससे, इस जुमले को ला करके कि आदत है भाई, हम तो इबादत नहीं करते हैं। कैसे आप सोच लीजिए, एक ऐसा इज्तिमा जिसमें ये कहा जाए चाहे कि जिसमें कुरान पढ़ा जा रहा है, भाई लोग कुरान पढ़ रहे हैं, या अल्लाह का जिक्र है, दुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान हो रही है, आपके शमाइल बयान हो रहे हैं, है ना, और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल करने की कोशिश की जा रही है बहुत सारी चीज़ों से, और लोगों की तो इसकी तरफ बुलाया जाता है, उन्हें उस पर उभारा जाता है ना। और ये ऐसा ये नहीं है, बल्कि उससे समझते हैं हमें अल्लाह का तकर्रुब हासिल हो रहा है, और हम अजर सवाब वाला काम कर रहे हैं, ये उनके दिमाग में है। तो एक तरफ तुम कहते हो ये आदत है, दूसरे तुम्हारा ये अकीदा, ये कुरान पढ़ना, सीरत बयान, सारी चीज़ें इकट्ठा होके, है ना, और तुम अजर सवाब की उम्मीद रखते हो। तो फ़कैफ़ यक़ूलून मिस्ल हाज़ा, कैसे तुम ऐसी बात करते हो भाई कि आदत है और इबादत नहीं है? तो इबादत क्या है उसमें? और इबादत कर रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं उस वक्त, कुरान पढ़ इबादत रहे नहीं हैं। है तो ये क्या है? ये इसको तुम क्या नाम दोगे? एक मिनट से हाँ, थोड़ा सा बस। एक मिनट इसके बाद याद आएगी। हाँ, तो रखिए दिमाग में, क्या करेंगे अभी। जी जी बिल्कुल। तो अगर इससे पूछा जाए, जो ऐसा लोग कर रहे हैं, जो ईद मिलाद मनाने वाले लोग हैं, बड़े अदब के साथ मैं अपने उन भाइयों से कह रहा हूँ, हमारे भाई हैं, इसमें कोई और शक नहीं। आपकी गलती नहीं है, ये उन मौलवियों की गलती है जिनकी जेबें भरती हैं, और जो पेट के पुजारी लोग हैं जिन्होंने गुमराह कर रखा है आवाम को। आवाम की ठीक है, आवाम आज तो उतनी बेवकूफ़ नहीं है कि मतलब वो बहुत सारे वसाइल है इल्म हासिल करने के, सीखने के। लेकिन मुगालते में डाल दिया गया है। मुगालते में, जी मैं नहीं कहता कि आवाम अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, है ना, और अल्लाह ने होश व हवास दिया है सबको, अक्ल है आपके पास, लेकिन
इस तरह से तलबीस इबलीस जो है ना, इस शैतान के चक्कर में ऐसा आपको इधर उधर से बातें ला के फंसाएंगे, अरे यार कुछ नहीं है, ये मौलवी लोग बोले तो एक आदत कर रहे हैं हम लोग को, ये इबादत थोड़ी कर रहे हैं कि गुनाह है, ये कोई बिदात थोड़ी हुई, समझ रहे हैं ना। तो अगर मैंने बताया कि भाई अगर इबादत नहीं तो क्या है वो, शेख साहब ने जवाब दिया इसका कि वो क्या है वो, सारी चीज़ें तो तुम कर रहे हो इबादत की, है ना। तो अगर इससे ऐसे लोगों से पूछा जाए जो ईद मिलाद मनाने वाले लोग हैं, जो इज्तिमा की शक्ल में महफिलें मुनाकिद करने वाले हैं, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, फिर तो कहेगा मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। तो उससे पूछो आप कि ये ईद मिलाद मनाना क्या उनकी फर्मा बरदारी है या मासियत है। अगर तुम मोहब्बत कर रहे हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो क्या आया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम नाफरमानी कर रहे हो, या ये तुम्हारी फर्मा बरदारी हो रही है, या नाफरमानी हो रही है। तो कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा कि मासियत है, हाँ वो कहेगा बिल्कुल ये तो फर्मा बरदारी है, कुर्बत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नज़दीकी हम चाहते हैं, मोहब्बत हमारे दिल में। तो उससे कहिए आप, उससे कहा जाएगा क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात जो है, ये जो तुम कर रहे हो, ये आपको मालूम था कि नहीं था पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, ये आपको नहीं पता था जो आज तुम कर रहे हो, हैं। तो वो बिल्कुल नहीं कहेगा कि आपको नहीं मालूम था, वो कहेगा नहीं नहीं बिल्कुल जो है आपको पता था ये। तो हम उससे पूछेंगे फिर क्या आपने अपनी उम्मत को इसका मतलब उन्होंने नहीं पहुंचाया, छुपा लिया आपने, यानी उम्मत को नहीं बताया कि मेरी जन्मदिन तुम मनाना, मिलाद मनाना, ये गोया कि आपने छुपा लिया नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो बताया होगा, तो हाँ, अगर बताया नहीं तो छुपाया, अगर बताया तो होना चाहिए। तो हम कहेंगे यहाँ सही बात है, क्यों नहीं कहेगा जो है कि वो उसको छुपाया। तो अगर वो कहेगा कि नहीं आपने बताया लोगों को, तो हम उससे कहेंगे जवाब में, आप सुनिए इन चीज़ों को, उससे कहा जाएगा कि वही हदीस कोई सुनाओ, तब लाओ हदीस सुनाओ, और हम बिल्कुल उसके लिए तैयार करने के लिए, है ना। इस मिलाद के ताल्लुक से अगर कोई हदीस तुम्हारे पास है तो ले आओ, हैं। और सबसे पहले मैं कह रहा हूँ, शेख कहते हैं कि मैं सबसे पहले मैं ईद मिलाद मनाऊंगा, दलील दे दो ला कर। हमारा तो काम है कि जी, सनकूनु नहनु अव्वलल मुहतफिलीन बिही, अल्लाह अकबर, है ना, लिअन्नना नुहिब्बुहु व हरीसूना अशद्दल हिर्स अला इत्तिबा सुन्नति सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हमारे दिलों में तो बड़ी सख्त मोहब्बत है, समझ रहे हैं ना, हमारे दिलों में बड़ी मोहब्बत है, और हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा के हरीस, हम तो पहले मनाएंगे, दलील लाओ। लेकिन अफसोस ये है मेरे दोस्तों कि दुनिया का कोई आदमी मिलादुन नबी के जवाज़ के ताल्लुक से एक भी सही हदीस या ज़ईफ़ हदीस जिसमें इस पे उभारा गया हो, है ना, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल या तकरीर से साबित हो, दुनिया का कोई आलिम इसको साबित नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। ये अकली तौर से आप समझें इसको, अकली तौर से आप इसको समझें, तो इसको आप आदत नहीं कह सकते। अच्छा, मैं समझ रहे हैं ना, आपकी बात नहीं हूँ, मैं हाँ नहीं इसी अकली जो बात चल रही है, तो अकल से भी इसको हम साबित कर सकते हैं कि यकीनन ये जो मनाया जाता है, जो मनाते हैं लोग, वो एज ए इरादा बनाते हैं, बिल्कुल इसको आदत नहीं बनाते हैं। कोई जी, अब मैं कैसे, जैसे मिसाल के तौर पर जो लोग मनाते हैं वो तो मनाते ही हैं, जो लोग नहीं मनाते हैं उन लोगों पर बाकायदा इतराज़ होता है कि आप लोग गुस्ताख हो, आप लोग तौहीन करते हो, आप लोगों को नबी से मोहब्बत नहीं है। तो जाहिर सी बात है जिन लोगों को मना किया, जो लोग नहीं मनाते हैं, उन लोगों को बाकायदा लान तान करना और उन्हें बेअदब और गुस्ताख कहना, उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न करने वाला कहना, ये दलील है इस बात की कि जो काम किया, जो काम छोड़ा जा रहा है, इसका मतलब कोई ज़रूरी काम नहीं, इसको ये लोग छोड़ रहे हैं, इसलिए गुस्ताख। पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, उसको मैं दलील देता हूँ उनके ज़ुबानी, जैसे जो लोग ईद मिलाद नहीं मनाते, उनको बाकायदा शेर में कितनी गंदी और भयानक बात कहते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ार ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ार ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में तो सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। यानी जो लोग नहीं मना रहे हैं वो इबलीस है। अल्लाह हिदायत हो, हमारे भाइयों को, और जो इस तरह गुमराह किया जा रहा है, अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे और अक़ल सलीम का इस्तेमाल करने की तौफीक दे। तो कहने की बात ये है कि ये जो लोग नहीं मनाते हैं उन्हें इबलीस कहना, जो लोग नहीं मनाते हैं उन्हें इबलीस कहना, ये दलील है इस बात की गोया कि ये अमर आदत नहीं, ये इबादत है। ये उमूर आदात में से नहीं बल्कि उमूर इबादत में से है। अब जब ये इबादत साबित हो गई तो ज़रूरी है कि दलील पेश करें। दलील नहीं है, इसकी कोई दलील नहीं है। तो ये अकली एतबार से भी देखें। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं देखिए, हम खैर खां हैं आपके, इसमें कोई शुबा जो नहीं। हमारे भाई अगर वो मनाते हो, हमारी बात सुन रहे हो, आप कतान अपने दिमाग में बात मत रखिए कि हम आपको गुमराह कर रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। जी, इसमें कोई शुबा हम आपके हमदर्द हैं, हम आपके खैर खां हैं।
हम ये चाहते हैं कि एक मुसलमान की ज़िंदगी किताब व सुन्नत के मुताबिक गुजरे, आप मामूली अमल करें लेकिन उस पर आपको अजर मिले, आप जन्नत के मुस्तहिक बन सकें, तो अल्लाह की रहमतें उसकी बरकतें आपके साथ शामिल हाल रहें। समझ रहे ना? हम जो है, हमारा मकसद मेरे दोस्तों इस प्रोग्राम से यही है कि एक सही मैसेज जाना चाहिए समाज में, और दीन नसीहत और खैर खाही का नाम है। हम उस मिशन पे चल रहे हैं जो नबियों का मिशन, जो रसूलों का मिशन है, और वलमा ही ये सच्चे हकीकी वारिस हैं इसके। इस मिशन को जो लेकर दावत का चल रहे हैं, तो मेरे दोस्तों कतान आप अपने दिमाग में मत रखिएगा, बड़े प्यार से मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये आपके भलाई की बात है, आपके फ़ायदे के लिए हम इस चीज़ को कह रहे हैं, और इस पे आप अमल करें, संजीदगी से आप सोचें, और अपने जो आपको इसकी तरफ तरगीब दें आप उनसे सवाल करें, इतने आप पूछिए बस। मैं आपको ज़्यादा नहीं इसमें आपका दिमाग में वो खर्च करने की बात करूँगा, आप इतने कह दीजिए कि मौलाना साहब एक दलील दे दो, कोई हदीस सुना दो आप कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया हो कि हमारा जो है जन्मदिन या ईद बर्थडे मनाना तुम लोग जो है हम मनाएंगे। सहाबा ने किया था कि नहीं किया था, शेख साहब इतने हमको बता दीजिए, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर मैं सही हदीस छोड़ दीजिए, आप कोई ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं पेश कर सकता, तारीख़ के हवाले से किसी किताब से नहीं साबित कर सकता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस तरह से अपना बर्थडे मनाया या मनाने का हुक्म किया, या आपके सामने ये चीज़ें हुई है ना, और आपने उसको बाकी रखा। दुनिया की कोई ताकत उसको साबित नहीं कर सकती है। आखिरी ये दूसरा शुबहा, अच्छा दूसरा सुबह आप डिसाइड करेंगे। नहीं, आप दूसरा सुबह पे से दूसरा शुबहा ये है कि अक़ली तौर पे मैं इसको समझाना चाहता हूँ, और जो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है हमारे ऊपर, वो ये है कि बहुत सारे मौलवियों ने किताबें लिखी हैं, बहुत सारे उलमा ने किताबें लिखी हैं जो इसको जायज़ कहते हैं, और सिर्फ वही लोग रोकते हैं। जैसे आपने शेर सुनाया अभी कि जो है ना, मैं तो नहीं कहूँगा कि इब्लीस की बात, नहीं, मैं लेकिन उनके वो कि मतलब जो सख्त लोग हैं, जो अल्लामा इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह, ऐसे लोगों के जो मानने वाले, उनके जो मुत्तबे हैं, उनकी जो तालीमात से मतलब जिन्हें दिलचस्पी है या उनको जो फॉलो करते हैं, है ना, ये लोग हैं जो सख्त किस्म के लोग, यही लोग रोकते हैं। जी, अच्छा, मैं वरना एक बड़ी तादाद है जो कहते हैं जायज़ 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 है। जी जी, अच्छा, यही बात में वो भी एक बड़ा शुभा लोगों के जहन में है। लोग ये समझते हैं कि हम उनके मुत्तबे हैं, जैसे बुखारी दुनिया के और ऐसी हरगिज़ बात नहीं, ये इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। हम असल में मुत्तबे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के हैं, अलबत्ता उन्होंने यानी इन खास में इन हस्तियों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को खोल करके उसकी वजाहत की है, तो हम उनकी उन बातों को मानते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबितशुदा चीज़ें हैं। अगर उनसे भी कोई चीज़ ऐसी साबित हो जाए जो हदीस से टकराती हो, तो हम उसको भी छोड़ने के लिए शायद एक और हम छोड़ते भी हैं, हम और छोड़ते हैं। हम तो किसी के ऐसी आंख बंद करके हम इत्तिबा नहीं करते, जिसने जो लिख दिया, और यही एक सच्चे अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है, यही हमारा तुर्रे इम्तियाज़ है, यही तुर्रे इम्तियाज़ है। इसी की दलील तो शेख जो है, ये मेरे ख्याल से मैं थोड़ा आप ऐड करेंगे, मैं इसका रद्द करना चाहता हूँ मुख्तसरन, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे बाद मशाइख ने रद्द किया है, मैं उनका कौल नकल कर रहा हूँ कि ये हक और दलील मोतबर होती है किसी भी जगह। शेख लिखते हैं अल इबरा बिल हक़ व दलील व लैसा बिल कसरा। जो आप लोगों का एतराज़ है मेरे दोस्तों, आज बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमारा तो पूरा इलाका मना रहा है, इतना बड़ा एरिया है, सब मिलाद मना रहे हैं, तो वही एक उसी जगह एक गाँव लोग नहीं मनाते। तो अगर ये सारे लोग गलत पर हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई इतनी बड़ी तादाद है तो गलती तो नहीं कर सकते ना। तो ये दलील डालाते हैं। मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाई, देखिए हक और दलील ये दो चीज़ें चाहिए किसी चीज़ को मोतबर मानने के लिए। वो चीज़ हक हो, उसके लिए दलील भी हो। ख़ास तौर से जो शरीयत का मामला है, आप दुनिया में कोई केस जा करके आप जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या दूसरी जगहों पर बगैर दलील के अपना केस लड़ लीजिए तो मैं जानूँ। आप तो दलीलों के लिए झूठे वकीलों को पकड़ते हैं, है ना, वकीलों का सहारा लेते हैं और उसमें ढूंढते हैं जो बिल्कुल चर जुबान हो, गर्चे गलत ही पर हो, सही दलील दे दे, है ना। ये दुनिया की हालत है। दुनिया से मैं इसका कंप्रोमाइज़ नहीं करता, इसका मुँह नहीं कर रहा हूँ, एक समझाने के लिए। लेकिन वो दीन के मामले में तो दलील तो बहुत अहम है। कोई भी इबादत, कोई भी चीज़ हम बगैर दलील के नहीं कर सकते। तो दलील चाहिए और वो हक हो चीज़, और किसी चीज़ की कमी और ज़्यादती किसी चीज़ के सही होने की दलील नहीं हुआ करती है। अगर ऐसा होता
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत देना शुरू किया मक्का में कितने लोग मुसलमान हुए थे? की बात है। एक आदमी अबू बकर हज़रत खदीजा मुसलमान हो गए, अबू बकर है, उंगलियों पे गिने जाते थे लोग। जी, जी, जी। हज़रत अली मुसलमान, आज कौन हुआ? ज़ैद बिन हारिसा हो गए, कौन अबू बिन खत्ताब हो गए। ये ऐसे 4 उंगलियों पे गिने जाते थे। सही। तो इसका मतलब ये था कि मक्का वाले और हक पर हैं। आज भी देख लें, अगर मजमूई तौर जी। पर पूरी दुनिया का मसाला करें जी जी, तो आज भी मुसलमान कम है। आज भी कम है। तो इसका मतलब इस्लाम जी, आज हमारी तादाद कम है। मान लीजिए जो क्रिश्चियन जो सोसाइटी है, जी। जिसे हम ईसाई कहते हैं अपने जुबानों में, जबकि वो कुछ उलमा रोकते हैं और कि ईसाई ना मैं- कहा जाए। बहरहाल तो उनसे हमारी तादाद कम है। इसका मतलब गलत है कि हमारा दिन बरहक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी मुसलमान कह सकता है कि मेरा दिन बरहक नहीं है, गलती वो मिलादी हो या जो बात ही हो, जो भी समझ रहे हैं ना? तो आप उसको जो है गलत नहीं मानेंगे। तो ये किसी चीज़ की, अब एक मिसाल मैं देता हूँ। आपके गांव में मान लीजिए अगर 500 की आबादी है, उसमें 300 लोग जो है दारू पीते हैं, 200 आदमी ठीक ठाक है कुछ, नहीं पीते तो मतलब 300 लोग सही हो गए, क्योंकि आपसे तादाद उनकी ज़्यादा है। तो आप उसको बोलो वहाँ पे कि नहीं, ये दारू पीने वाले लोग हमसे बेहतर यही सही हैं। है, जिंदगी में आप नहीं कहेंगे इसको। बिल्कुल नहीं कहेंगे, बल्कि दारू पीने वाला भी जी, नहीं कहेगा। तो जहाँ मीलाद मनाना हो वहाँ पूरी पब्लिक को देखते हैं कि कितने दुनिया में लोग मनाते हैं। हमारा इलाका पूरा वही, भाई वो पूरा इलाका वही जानता है, उसे कुछ पता ही नहीं है, तो मनाएगा वो। जी जी। अच्छा देखिए, एक बड़ी पते की बात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अकेले को जी वो जी तौहीद पर अकेले डटे हुए थे। जी जी। और उनके मुकाबले पूरी कौम है। उनको अल्लाह ने क्या कहा, इन इब्राहीम कान उम्मतन कानितन हनीफन लिल्लाह। जी जी जी, उम्मतन कानितन, अकेले एक इब्राहीम को पूरी उम्मत पूरी जमात कहा गया। जी जी जी। हालांकि वो अकेले थे। अल्लाह ने फरमाया कलीलुम मिन इबादिय शुकुर, मेरे शुक्रगुजार बंदे थोड़े हैं। हमेशा मेरे दोस्तों आप इसको याद रखो, दुनिया के किसी कोने में आप जाओगे, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे, नेक बंदे, तौहीद पे चलने वाले लोग, सुन्नत की इत्तबा करने वाले लोग सही तरीके से आपको हमेशा कम मिलेंगे। कहीं आप उनको उंगलियों पे गिन लेंगे, कहीं एक गांव में 4-6 लोग नजर आ जाएंगे और पूरी की पूरी बस्ती आपको जो है बातिल परस्त नजर आएगी। तो ये दलील नहीं होती, पहली चीज। उसके अलावा शेख, उसके अलावा एक बहुत बड़ा कस्बा है, तकरीबन 1000-1200 लोग हैं। आप मस्जिद में जाकर के देख लीजिए कितने लोग होते हैं, जी जी 20-25 लोग। जी तो जी, क्या यही मतलब है? हालत है। बेनमाजियों की तादाद ज़्यादा, नमाजियों की कम, जिसका मतलब बेनमाजी सही है नहीं है। तो आप कभी भी इसको मेयार ना बनाएं किसी चीज़ को कसरत परखने कोई के लिए मेयार नहीं है जी। कि तादाद का ज़्यादा होना उसकी ज़्यादती किसी चीज़ के सही होने की दलील है। दूसरी चीज़ कि ये दूसरा कौल जो आप बोलते हैं कि अक्सर उलमा ने लिखा, हाँ, तो आप यहाँ गौर कर लें, देख लें कि हमारे जो अइम्मा हैं, ख़ास तौर से जो अइम्मा अरबा हैं, है ना, और जिनके फॉलोवर हैं, जिनको लोग मानते हैं, चाहे इमाम हनीफा रहमहुल्लाह से लेकर के और इमाम मालिक तक, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद बिन हम्बल हैं, शाफई हैं, इमाम मालिक हैं, जो मशहूर इमाम हैं। ये बहुत सारे अइम्मा, बहुत सारे मुहद्दिसीन हैं। बात काट करके एक बात, कुछ लोग शायद समझते हैं कि इमाम सिर्फ 4 थे। जी जी, ऐसी बात नहीं है, ऐसी इमाम बात की भरमार है मैं माशाअल्लाह। वही कह रहा था जी, कि बहुत सारे अइम्मा हैं इनके अलावा, इमाम मतबू 4 है। चूँकि एक मजहब की बुनियाद पर मसले मसाइल के ताल्लुक से इन्होंने जो खिदमात अंजाम दी हैं, तो इसलिए लोग इनकी तरफ अपना इंतसाब करते हैं। और ज़रूरी भी है, हमें बगैर उनके हम दीन नहीं समझ सकते। लेकिन जो अकरब इला सवाब हो, जिनकी बात है कुरान और सुन्नत से जो करीब होती हैं, हम उसी को लेते हैं, चाहे जिस इमाम का हो। हम सारे अइम्मा का एहतराम करते हैं। सारे अइम्मा सारे मुसलमानों के लिए हैं। वो किसी एक समाज, किसी एक सोसाइटी, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं हनीफा हमारे हैं, फलाना हमारे हैं, नहीं, वो सारे मुसलमानों के हैं। सारे दीन की खिदमत उन्होंने की है, सारे मुसलमानों की खिदमत की है, और उनका एहतराम ज़रूरी है। अल्लामा इब्न तैमिया ने, जिसको लोग बदनाम करते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, रफ़उल मलाम अनिल अइम्मतिल आलाम, है ना। यानी जो हमारे ये चोटी के अइम्मा हैं, इमाम हनीफा से लेकर इमाम मालिक तक, ये चारों, इमाम मोहम्मद शाफी वगैरह, इनकी तरफ से दफा किया है अल्लामा इब्न तैमिया ने अपनी इस किताब में, कि इनको बुरा भला करना, इनको कुछ कहना कि उन्होंने ऐसी बात कह दी, जैसे लोग तासुब मज़हबी में कहते हैं, मसलकी तासुब में, गलत चीज़ है। सबका एहतराम ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता था इसकी तरफ भी मुंतसिब हो, इसमें कि मैं ठीक है, मैं इनसे उनका मैं बात या उनके मसलक में मैं चलता हूँ, उस इमाम ने भी इस बात को जायज़ नहीं कहा। इब्न तैमिया को छोड़िए, उनसे पहले की बात, ये सब पहले के लोग। अच्छा देखिए, मनाने वाले जितने भी मनाते हैं मिलाद, वो सब अपने आप को इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब करते हैं, हैं। और इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने खुद इसकी तरफ रहनुमाई नहीं की है। तो इसका मतलब ये है कि इमाम साहब गलती पे थे। इसका आप उनको नहीं मानते, इसका मतलब या नहीं मानते, मीठा मीठा कब कड़वा कड़वा वाली बात हो जाएगी। जहाँ आपके मतलब की बात हो तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, और जहाँ आपके मतलब के खिलाफ हो तो वहाँ हमको नहीं मानेंगे। इसका मतलब तो दुनिया का कोई आलिम नहीं साबित कर सकता कि इन अइम्मा ने इसको जायज़ करार दिया। बिल्कुल बिल्कुल
जबकि ये पहले के लोग हैं, इब्न तैमिया, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और दूसरे छोड़िए इन लोगों को। जी हाँ। तीसरी चीज़ जो इसमें है शेख वो, तो इनका कहना यह है कि मतलब वो लोग सख्त किस्म के लोग जो अल्लामा इब्न तैमिया या इस किस्म के लोगों की तरफ अपनी निस्बत करते हैं या उनको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास कुछ मिसालें हैं, मैं अगर एक दो मिसाल में देता हूँ कि ऐसे उलमा जिन्होंने जो मदरसे इब्न तैमिया से फारिग नहीं है या उनसे इस्तिफादा नहीं किया, अल्लामा इब्न तैमिया से उन्होंने इस्तिफादा नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने भी इसको जो है नाजायज़ और हराम कहा है। एक मिसाल में देता हूँ, अल्लामा ताजुद्दीन अल-फाकिहानी एक मालिकी हैं, इमाम हैं, बड़े आलिम हैं ये। उनकी किताब है रिसाला अल-मौलिद फ़ी अमल अल-मौलिद, उसमें सफ़हा 20 में लिखते हैं, ला आलम लिहाद अल-मौलिद असलन फ़ी किताबिन वला सुन्ना वला युनक़ल अमलुहु अन अहद मिन उलमाइल उम्मा अल्लज़ी हुमुल क़ुदवा फ़ी द्दीन वल-मुतमस्सिकून बिअसालिल मुतक़द्दिमीन बल हुवा बिदअतुन अहदतहल बत्तालून। है ना, कितनी अच्छी बात कही है कि इस मौलिद का जो मिलादुन नबी मनाने की इसकी कोई असल किताब व सुन्नत में नहीं है, और ये अमल जो है किसी भी उलमाए उम्मत से साबित नहीं है, मनक़ूल नहीं है। जो दीन में हमारे खुदवा, जो दीन के आसार को मुतमस्सिक मजबूती से पकड़ने वाले लोग जी, शेख अल्लामा लिखते हैं ताजुद्दीन फाकिहानी की ये बिदात है जिसको जो है इस तरह बत्तालून में बातिल परस्त लोगों ने इसको जो है इस तरह से इसको ईजाद किया है ना, जिसके बारे में शरीयत के हुक्म नहीं देता हमको इसके लिए। वला फ़अलहु सहाबा वला ताबिऊन, ना तो सहाबा ने किया ना ताबईन ने किया। आप सुनिए इस इमाम की बात को, समझ रहे हैं ना। वलल उलमाउल मुतदय्यिनून फीमा अलिम, तो मेरे इल्म की हद तक किसी भी दीनदार जो दीन पसंद दीन पे चलने वाले चोटी के उलमा से भी ये चीज़ साबित नहीं है ना। और बहुत बड़ी बात मेरे दोस्तों मैं कह रहा हूँ, इसको आप महफूज रखिएगा अपने दिमाग में। लिखते हैं वहाज़ा जवाबी अनहो बैना यद इल्लाह इन अनहो सुइल्तो, यही मेरा जवाब अल्लाह के सामने होगा। अगर अल्लाह के सामने मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ मेरे दोस्तों बड़ी अजीम बात कही उन्होंने, कहा कि है ये हो ही नहीं सकता कि ये चीज़ जो है मबाह है और जायज़ हो, क्योंकि दीन में इब्तिदा जो है ये इजमाए मुस्लिमीन का इत्तेफाक है, इससे जो है मुसलमानों का इजमा है इस पर कि जो है ये चीज़ मबाह और जायज़ नहीं हो सकती है, दीन की में बिदात की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये उलमा हैं उन उलमा में से जिन्होंने मदरसे इब्न तैमिया या इस किस्म के उलमा को से इन्होंने नहीं हासिल किया, मतलब उनकी तरफ अपने आप की निस्बत करने वाले लोग हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये बात थी। इसी तरह मेरे दोस्तों इब्नुल हाज अल फासी हैं, उन्होंने भी लिखा है मदखल, उनकी एक किताब है, यही चीज़ लिखा, उन्होंने भी इसको बिदात कहा और कहा कि ये सुन्नत से ये चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और ये बिदात है और सलफ़ सालिहीन से ये चीज़ साबित नहीं है। उसका मैंने खुलासा बयान किया। और अल्लामा शातबी लिखते हैं, वसूली आलिम है अबू इसहाक़ शातबी, मालिकी उलमा में से, अपने फतावा में सफ़हा 203 में लिखते हैं वो कि मालूमुन अन्ना इक़ामतल मौलिद अला वस्फ़िल माहूद बैन अन्नास बिदअतुन मुहदसा व कुल्लु बिदअतिन दलाला। ये जो जिस अंदाज से जो मिलाद मनाई जा रही है, जिस तरह लोग कर रहे हैं, शेख बस वो, तो ये बिदात है, एक नई चीज़ है और हर बिदात जो है गुमराही है। तो सारे उलमा, वो उलमा जो आप अगर ये बोलते हो कि इब्न तैमिया के लोग बड़े सख्त हैं उनके मानने वाले या जो उनकी तरफ, तो ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्तों। जो हक परस्त आलिम है, जिसके पास इल्म है, चाहे वो अल्लामा इब्न तैमिया को फॉलो करे या जैसे भी हो, समझ रहे हैं ना, तो उसने जो है उन्होंने किसी ने भी इसको जायज़ नहीं कहा है और ये चीज़ हराम है, बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए जो है हम किसी के धोखे में ना आए मेरे दोस्तों। आप अच्छा अमल करो, नेक अमल करो, जो अमल आपको फ़ायदा दे। ऐसा ना करो कि आपकी मेहनत बर्बाद हो, पैसा बर्बाद हो, सारी चीज़ें आप करें, उसके बावजूद नतीजा जीरो आए, बजाय सवाब के आप जो है अजाब और गुनहगार हो जाएं, अजाब के मुस्तहिक बने। तो सबसे बड़ी चीज़ मुसलमान को ये समझनी चाहिए, आप हमारी इन बातों को सीरियसली लीजिए और सोचिए, समझिए इन चीज़ों को और अमल में लाने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं कहना चाह रहा था कि आप देखें आज के इस डेट में भी अगर देखें तो बहुत सारे वो उलमा जो मिलाद मनाते हैं जी, या जिनके मानने वाले मिलाद मनाते हैं, उनमें बहुतेरे उलमा आपको मिल जाएगा, अगर जो कम है बहुतेरे उलमा मिल जाएंगे जिन्होंने आज तशवीश जाहिर की है कि जो सिचुएशन बनी हुई है ईद मिलाद के नाम पर, ये बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बहुतेरे उलमा आपको मिल जाएंगे आज के भी इस तारीख में। और तो कहने की बात ये है कि तो क्या वो लोग भी गुस्ताख हैं, उनके मसलक में हैं, हाँ, वो खुद वो लोग रोक रहे मानते वाले हैं। और एक बड़ी नुक्ते की बात मेरे दिमाग में आ गई, उसके प्रोग्राम में बात नहीं थी मेरे दोस्तों। एक चीज़ जो है
एक मतलब वही उन्हीं उसी ग्रुप के अकालिम का मैंने एक वीडियो सुना, मक्ता जो है बड़ी सख्ती से उन्होंने रद्द किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख वफ़ात 12 रबीउल अव्वल, और उस पर इज्मा है। जी इज्मा है, 12 रबीउल अव्वल पे सारे लोग मानते हैं। इख्तिलाफ है तारीख पैदाइश में, साहब रहीकुल मखतूम या अल्लामा मंसूर पुरी ने रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे बहुत से लोगों ने उन्होंने जो राज करार दिया हो 9 तारीख को, 9 रबीउल अव्वल को रहमान साहब ने बाकायदा वो बनाया है जी, चैट, और उसको साबित किया है 9 तारीख को। उन्होंने कहा है कि 571 ईस्वी में रबीउल अव्वल का जो महीना आया था उसमें सोमवार 12 तारीख को पड़ता ही नहीं, पड़ता नहीं। जी 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 जी, बहुत बारीक नुस्खे की बात है। अभी वैसे भी थोड़ा अकली सोच है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तो 12 को फिक्स है, किसी का इख्तिलाफ नहीं, किसी का इख्तिलाफ नहीं। अच्छा, अब रही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की तारीख के हवाले से, तो उनके अपने उलमा भी मुख्तलिफ हुए। कुछ लोग कहते हैं 8, जी जी, कुछ लोग कहते हैं 11, कुछ लोग कहते हैं 12, कुछ जी लोग जी कहते जी, हैं 18, 17, मुख्तलिफ रिवायत है। तो मुख्तलिफ जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ईद होती, अगर ये शरीयत में होती तो यकीनन उसकी तारीख फिक्स होती, इख्तिलाफ नहीं, उसमें इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं बनती। बिल्कुल बिल्कुल। ईद की नमाज है, कुछ सवाल जी ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, जी बिल्कुल। जी, जी। तो ईद की तारीख हो और उसमें तारीख के बारे में इख्तिलाफ हो और लंबा चौड़ा इख्तिलाफ हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अक्ल नहीं मानती इस बात को, असल में आने वाली चीज़ नहीं है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? एक किस्म से मतलब कि ये एहतराम नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नहीं, यानी तुम कोया की खुशी मना रहे हो, वो तो गम का दिन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पे मदीना की क्या हालत थी, पूरा मदीना मगमूम था, मदीना के दरो दीवार मगमूम हो गए थे। सबसे सियाह दिन वही था, सबसे स्याह दिन वो था, मुसलमानों के लिए सबसे नाजुक दिन था वो। बिलाल हबशी जैसे लोग अजान देने से मैं कैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलूँगा, उमर फारूक जैसे लोग मानने के लिए तैयार नहीं, अबू बकर सिद्दीक ने जब खुतबा दिया वमा मुहब्बुन इल्ला रसूल, और दूसरी जो आयत मन कान याबुदु मोहम्मदन है ना, कि मतलब वो एक रसूल थे जो मोहम्मद की इबादत करता था तो चले गए दुनिया से, जो अल्लाह की इबादत करता अल्लाह हय्य क़य्यूम है, वो जिंदा है, समझ रहे हैं ना। तो लोग ऐसा समझते थे, लोग कुछ लोगों ने कहा, हम लोग सुने कि जैसे ये आज हम इस आयत को सुन रहे हैं जो आयत उन्होंने तलावत की थी, तो ये चीज़ थी मेरे दोस्तों। क्यों? ये फ़र्क़ मोहब्बत, मोहब्बत में जो आदमी सहाबी रसूल को अपने आँखों से देख रहा हो रोज़ाना, और अब नबी को नहीं देखेगा, तो आप भी जब देखें, हमारा तो गायबा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, गायबाना ईमान है, उसके बावजूद हमारे दिल में कितनी मोहब्बत है कि रसूल के खिलाफ एक जुमला सुनना नहीं गवारा करते, है ना। और होना भी चाहिए, ईमान का तकाजा भी यही है कि सारे लोगों की मोहब्बत, उनकी मोहब्बत गालिब हो। लेकिन मोहब्बत का मतलब नहीं है यार कि मोहब्बत के नाम पे तुम उनकी क्या है, उनकी तकसीर करो, उनकी शान में गुस्ताखी करो, उनको उनके मकाम से दूसरे मकाम में ला के रख दो, ये मोहब्बत की दलील नहीं है। जिससे आदमी मोहब्बत करता है उसका एहतराम करता है, उसकी एक एक बात से इत्तेफाक करता है, वो क्यों नाराज़ ना हो जाए, है ना, उनके खिलाफ ना जाए, या तो टोटल उनके खिलाफ जा रहा है। तो एक किस्म से ये समझिए कि वो एहतराम नहीं है। और इसी चीज़ को आज हमारे जो थोड़ा रोशन ख्याल मैं कह सकता हूँ, जो लोग सोच रहे हैं, हमारे जो बिदात से जुड़े हुए वलमा हैं, वो इस बात को कह रहे हैं, वो अपने आवाम को समझाते हैं कि तुम लोग क्या करते हो भाई, इसका तो वो दिन की वफ़ात हुई थी उनकी। शेख अगर सपोज दैट मान भी लो कि 12 तारीख को अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई, जी हाँ, जी हाँ, मान लो। अब वो पैदाइश हुई, ख़त्म हो गई, आप मुस्लिम वफ़ात पा रहे हैं, जी इससे बड़ा गम और फिर आप खुशी मना रहे हो। बिल्कुल वही चीज़, तो गम का वक्त है। पैदाइश तो खुशी तो आपको है, ठीक है, लेकिन वफ़ात का गम भी तो और सामने है। शेख एक नुक्ता किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, वो मिलादुन नबी नहीं कहेगा, पब्लिक आम तौर से मैंने खुद सुना कहेंगे 12 वफ़ात है, और पहले तो बाकायदा लिखा जाता था। आज भी पब्लिक आवाम से 12 वफ़ात ही बोलती है। देहात वगैरह में अब जी। लेकिन चालाकी से अब उसको नाम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की कोशिश में है। लेकिन और बाकायदा मैंने सुना है कि कोई बाकायदा उनकी कॉन्फ्रेंस और मीटिंग वगैरह हुई थी, जिसमें बाकायदा जो है, मेरे ख्याल पाकिस्तान की खबर है ये शायद, कि बाकायदा वहाँ उलमा की मतलब एक काउंसिल इकट्ठा हुई, उसमें बाकायदा इस चीज़ पर बैठ करके उलमा ने रिसर्च करके गुफ्तगू की कि अब 12 वफ़ात को निकाल करके इसकी जगह देखें ऐसा है शेखुल्ला साहब, पहले जैसे अभी क्या होता है ना, किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए ना उसकी एडवर्टाइज की जाती है। जी एडवर्टाइज करने का बहुत तरीका है, बहुत तरीका। अभी सोशल मीडिया आ गया, उसके पहले आप देखें जब इतना ज़्यादा आम नहीं था शेख, पोस्टर लगते थे, पार्टियों के झंडे नहीं होते हैं, जी जी, इस तरीके से झंडे और बाकायदा आज भी बनाते हैं, मोटरसाइकिलों पे आप देखिए लगाए जाते हैं, उसकी पगड़ियाँ होती हैं, उसके रुमाल होते हैं, उस सारी चीज़ आहिस्ता आहिस्ता लोगों के बड़े बड़े इश्तिहारात निकलते थे, है ना। शेख हद तो वो हो गई कि वो नबी जो म्यूजिक से कहता है कि ये शैतानी काम है, आजकल ऐसी चीजें या ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, उसको देख करके आप के पानी हो जाए। मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार खड़ा था अपने यहाँ पाकिस्तानी शेर निवास में इंडियन पाकिस्तानी गाने चल रहे होते, उस पर डांस हो रहा है, जी जी, और पीछे जश्न मिलादुन नबी वल्लाह शेख जब वो काफिला गुजरा डीजे के साथ,
पीछे ट्राली पे औरतें, मर्द, हम लोग खड़े थे ऐसे कई लोग। वल्लाह कह रहा हूँ कि मेरा सर जो है ना शर्म से झुक गया। कोई शुबा नहीं। ये गैर मुस्लिम जो है ना, ये क्या सोचेंगे लोग? यही दीन है इनका, यही इस्लाम है। और यकीन जाने मतलब इस हद तक लोगों में ये सारी चीज़ें फैल गई हैं जी कि अब मुसलमान गैर मुस्लिम जो है वो इस्लाम का नाम नहीं समझते, वही समझते ढोल तमाशा ये वो। जी। अच्छा सुने सुने, अभी कुछ इतना आगे पहुंच गए, मैंने बहुत सारे अहले हदीसों को जश्न में जाते हुए देखा। तो मैंने पूछा कि यार क्यों लोग करने जा रहे हो यार? उन्होंने क्या कहा पता है आपको? उन्होंने कहा कि पता है कि ये जो जश्न होता है ना, तो इसमें हम लोग अपने पावर का मुजाहरा करते हैं। क्योंकि जिस तरह से गैर मुस्लिम वगैरह उनका पूजा निकालते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जश्न होता है उनका, जुलूस होता है, तो हम भी शो करते हैं कि हम आपसे कम नहीं हैं। हद होगी यार। ये तो बड़ी अजीब सोच है। और सही बात ये घटिया है कि- सोच कही। जी मतलब अब आप सोचें अगर यही नीयत आपकी है तो आप ईद और बकरीद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रास्ते से जाओ, दूसरे रास्ते से आओ, जी। तकबीर पढ़ते हुए जाओ, आपके पास 2 मौके साल में है, कम है। जी जी। और उसके अलावा आपको भी किसने इजाजत भाई दी? नाजायज तरीके से शेख, आपकी चीज़ उसका जो मनफी पहलू, जो निगेटिव जो उसका असर सामने आता है, आप देखिए कितनी जानें इसी में चली गई। कितने राइट हो जाते हैं हिंदू मुस्लिम के। एक देखिए बिल्कुल ही टाइम है अभी, ये मान लीजिए कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं हमारे मुल्कों में, उनके यहाँ उनका एक त्यौहार है, दुर्गा पूजा वगैरह है, जुलूस निकलता है, निकलेगा अभी 2-4 दिनों में, और तकरीबन उसी से मिलते जुलते दिनों में 12 रबीउल अव्वल आम तौर से टकराव होती है। आप देखिए माजी की तारीख देख लीजिए, कितने शहरों में झड़प हुई कि उसी रास्ते से मुसलमान जाना चाहता है, उसी रास्ते से वो लोग जाना चाहते हैं। तो अकली तौर पर आप देखें हालात के तनाजुर में भी, तो इस्लाम तो अमन शांति का मजहब है ना, और उनकी वजह से कितना बड़ा नुकसान और हो रहा उसके है। अलावा उसको आप देखें, जिस नबी की मिलाद आप मना रहे हो, जी। वो नबी तो ऐसा नबी है कि अल्लाह के रसूल अगर किसी रास्ते से गुजरते हैं, जी। ऊपर से कोई कूड़ा फेंकता है, दूसरे दिन नहीं फेंकता, तो आप चले जाते हैं हाथ चाल लेने के लिए। जी। तो वजह क्या है, क्यों नहीं फेंका इसने आज? जी। उसके बाद बहुत सारे वाक़यात हैं जो इस बात पर दलालत करते हैं कि यार ठीक है, तो ये नबी हमारा अगर कह रहे हैं कि हम इस रास्ते तो दे दो रास्ता उनको जाने जी जी। दो। आप और आइए। इस अमल से तो नुकसान इस्लाम ही को हो रहा है ना, इस्लाम बदनाम हो रहा है, मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, एक इस्लाम की छवि खराब हो रही है। खराब हो रही है। इस्लाम के एक साफ और शफाफ चेहरा जो है ना, बिगाड़ के पेश उसको कर आप रहे हैं। बिगाड़ कर उसको कलंकित कर रहे हैं, उस पर कलंक लगा रहे हैं, एक धब्बा लगा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मेरे दोस्तों संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। आप चिढ़े ना किसी आलिम की बात से, और बिल्कुल जो है आप अपने दिल में कोई ऐसी बात ना सोचें। ये उलमा आपके खैर खां हैं, आपकी भलाई के लिए और आपके को सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करने के लिए इनकी मेहनत और ये प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हमें इनको क्या है बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा एक चीज़ और शेख मैं क्रिएट करना चाहूँगा, आप लोग काफ़ी देर से बात कर रहे हैं। जैसे इख्तलाफात, मेरे आपके किसी मसले को लेकर इख्तलाफ हो सकता है कि हमारे आपके शरई मसाइल पे बहस हो जाए, होती रहती है, और इस पर तो बाकायदा सवाल और जवाब सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए कि अगर उसने ऐसा कहा है तो हम उसको गाली गलौज करें, आए काफिर मुनाफिक कह दें, गुस्ताखियत दें, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस कुरान को हम लोग फॉलो करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फ़ैन तनाज़ात फिर आसान सी बात है कि हमारे आपके किसी मसले पर इख्तलाफात हो गए हैं, फिर ठीक है, आपका एक नज़र ये है, आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता मैं यही समझता हूँ, तो आप आए ना कुरान हदीस को लेकर के बैठे बात करते हैं, देख लेते हैं कुरान में क्या हदीस में मामला है। भाई इस्लाम में जो क़ुव्वत और भाईचारगी है, जो एक अपनाइयत है, वो इम्तियाजी सिफत है इस्लाम की, सही बात है ये ना। मिजाज हम तो गले लगाएंगे भाई, आइए आप, या आप बुला रहे हैं चले हम बैठेंगे आपके साथ, लेकिन लड़ाई झगड़ा लाठी डंडा वहाँ नहीं होना चाहिए, जो हालत लोगों ने बना रखी है। जरूर नहीं भाई। हाँ, हम आराम से मोहब्बत से बात करते हैं, ठीक है भाई, अगर आप साबित कर लिए तो बेहतर, नहीं साबित कर पाए तो हमारी बात मानिए, है ना। तो ये अगर सोच लोगों में आ जाए, और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह धीरे-धीरे इस तरह जो इस्लाह हो रही लोगों की, अब समझ रहे हैं लोग। आज से 10 साल पहले जो एक सोच थी, बहुत तब्दीली उसमें आई है। जो भी ज़रिया हो, चाहे मकातिब दावा हों या खुतबात और उलमाए हक़ की तकरीरें हों, है ना, लेकिन आज लोग सोच रहे हैं। एक आदमी सोचता है कि यार सऊदी अरब में नहीं होता, हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो हमारे मुल्क में क्यों होता है, तो ये चीज़ उसके दिमाग में जाती है। एक चीज़ और शेख, हमारे जो वाइज़ीन हैं, हमारे जो मुबल्लिगीन, हमारे जो दुआत हैं जी, मैं तो खैर बहुत छोटा हूँ इस मैदान में, लेकिन मैं उनसे आप लोगों को साथ किया है, आप लोग शायद मेरी बात की तारीफ करेंगे कि हमें ना अपना जो पॉइंट ऑफ बिल्कुल चाहे आप नंबर में से बात कर रहे जी, हो, जी। चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, कहीं भी हो, आप एक मुस्बत अंदाज से बात करें बिल्कुल। और कुरान और हदीस कोट करें। किसी को तंज करने की जी, ज़रूरत जी, है नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप किसी को तंज करेंगे वो मुखालिफ हो जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि आप किसी चीज़ को फोर्स करेंगे ना, वो भी
लगाएगा, मुकाबला करेगा। और आप किसी के सामने जब कुरान में ये है, हदीस में ये है। शेख जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से कह दिया लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, मुसैतिर हम और आप कौन होते हैं भाई जो नबी रिसालत वलो को कुन्त लेकर आता है? फद्दन गलीदन लनफद्दु मिन हौलिक। लनफद्दु मिन हौलिक। अगर रसूल को कुरान ने कहा आप सख्त दिल होते ना, भाग जाते, सब आपकी बात नहीं सुनते। तो शेख बहुत अच्छी तो बात ज़रूरी है आपने शेख, जिक्र क्योंकि आप की, बहुत देखें- पॉइंट की बात आपने जिक्र की है। और मैं थोड़ा ऐड करना ये चाहता हूँ कि आज ये बहुत बड़ी कमी है हमारे उलमा और दुआत में। इतने लोग जज्बात में आ जाते हैं कि उनको बुरा भला कहना, डांटना, और इस तरह से एक भी मिसाल दे दे कोई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी काफिर को बुरा भला कह के डांटा हो कि तू ये करता है, तुम वो करते हो, तुम्हें कहा कभी आपने? शेख अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने का जो तरीका था जी। उसको सब हम पढ़ लें। मतलब एक शख्स मस्जिद में बैठ करके अल्लाह के रसूल से कहता है कि अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त देते कि मैं ज़ना करूँ। जी, आप मुझे बताइए कि कौन इसको बर्दाश्त करेगा? नहीं बर्दाश्त। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े जामियात हैं, बड़े बड़े मशाइख हैं, बड़े बड़े वाइज़ीन हैं, अगर कोई आ करके इस तरह सवाल पूछे तो भगा देगा उसको, घर से भगा देगा। साहबे कराम ने भी बड़ी हैरत भरी निगाहों से उसको देखा और चुप हो। लेकिन अल्लाह के रसूल ने उसको बुलाया अपने पास, जी। शफ़क़त से बिठाया, बिल्कुल। उससे कुछ सवालात किए कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी खाला के साथ, तुम्हारी फूफी का कोई ज़ना करे, तुम्हारी माँ के साथ कोई ज़ना करे? उसने कहा मैं चाहूँगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जिस तरह से तुम नहीं चाहोगे जी, उस तरह से कोई भी शख्स नहीं चाहेगा उसकी माँ के साथ ज़ना किया जाए, बिल्कुल। उसकी बहन के साथ ज़ना किया जाए, उसकी बेटी के साथ ज़ना किया जाए, उसकी खाला फूफी के साथ ज़ना किया जाए। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने उसको समझाया भी जी, और दुआ भी की, दुआ की। अल्लाहुम्मा हस्सिन फर्जहू वग़फिर ज़ंबहू वतहिर क़ल्बहू। और ये एक जो नतीजा हमारे हुआ कि छूट नतीजा गई वो हुआ चीज़। कि वो सबसे मबगूज़ अमल उसके लिए हो गया। जी। उस शख्स ने जो मतलब अल्लाह के रसूल से इबादत चाह, ज़ाहिर सी बात है मुदमिन रहा होगा वो। वही चीज जब थी, वो अल्लाह के मुदमिन रसूल से था, पूछ रहा था। उसलिए मतलब ये था कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हाँ, हूँ। मगर ये उसने नहीं हो कहा पाएगा। था सिर्फ आप मुझको एक चीज की इजाजत दे बस, दीजिए, हाँ। बस। कोई तो नहीं। ये चीज़ है हमारे यहाँ जो मुरब्बीन हैं उनको भी इस ज़ाविये और पर शेख अल्लाह जाक आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है। और इस चीज़ को मेरे दोस्तों, हमारे हम लोगों को, हम सब उसमें शामिल हैं कि हमें उनको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाने की ज़रूरत बिल्कुल है सही। कि हम प्यार से समझाएं उसको आप डांटेंगे, गुस्सा होंगे उसके ऊपर, तुम ऐसा करते हो, तुम फला हो, ये हो, वो हो, है ना, तो ये चीज़ आपकी आप दावत वही देख मुअस्सिर लें नहीं कि होगी। शेख ना वो जो आराबी आया था जिसने पेशाब किया पेशाब किया था सर, जी जी जी। था, तो क्या हुआ? अल्लाह के रसूल ने बोला उसने दुआ मतलब खास कर दी अपने और रसूल के लिए। और आज के लोग होते गिरीबान पकड़ के भाग होगा। बाहर करते हो, पानी भरवा के ला के धुल इसको, हाँ समझ रहे हैं ना? बिदाई हाँ, मौलवी और इमाम साहब करते मस्जिद में हाँ, ऐसा। वही कर रहे हैं। वही सब वही कर रहे ये देखिए, छोड़िए इसको, आप दुनिया में कहीं भी रहें, हम्म। हमारे अपने अपने दुआत इखवान से जो है, जो हमारे दाई लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, दुआत हैं, कहीं भी हों, आप हिकमत को मुकद्दम रखिए, मसलहत को मुकद्दम रखें, आप इसको सामने रखिए। और अपने उसलूब को, अगर ये कुछ हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर कुछ शिद्दत है, कुछ सख्ती है, मेरे दोस्त को बड़े अदब के साथ मैं कहता हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ उसमें नसीहत कर सकूँ, लेकिन एक दिल की बात है जो शेख ने छेड़ दी, हमें उसमें चेंजिंग की ज़रूरत है। अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होंगे, और उसी वक्त हमारी दावत कामयाब होगी। गुस्से से और इसी तरह डांट डपट करके, नफ़रत करके, किसी को बुरा भला कह करके कभी भी हम अपने मिशन में और दावती मैदान में कामयाब नहीं हो सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपका तरीक़ा, आपका उसवा, सहाबे किराम की दावत का नतीजा और तरीक़ा हमें अपनाना पड़ेगा। एक मिसाल देता हूँ कि आप देखें जो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने जब दावत शुरू की थी तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी दावत देना शुरू कर, जब इस्लाम में आ गए, और उनके ज़रिए से कितने लोग मुसलमान हुए। अजिल्ला साहब जी जी। तो अगर वो सख्ती करते हो लोग, तो कितनी, मतलब आप सीरत को पढ़ लें, हम लोग तो जानते हैं कुछ न कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें उसी दायरे में रह करके काम करना चाहिए। और कभी भी आप देहात की मस्जिद में कहीं खुतबा दे रहे हों, आप ऐसी जगह पहुंच जाएं, कहीं आपकी रिश्तेदारी है, गांव के लोग अक्सर जो है वो मान लीजिए अहले बिदात हैं या उनको सही चीज़ नहीं मालूम, तो वो इतने प्यार से समझा दें कि वो लोग गर्विदा हो जाओ, चाहे कि शेख साहब दूसरा जुमा भी आके पढ़ाइए, ये चीज़ हो, हाँ आपको दावत रहेगी, आ जाइएगा जो है ना। तो ये चीज़ अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। अच्छा अल्लाह हम शेख, सबको इसकी तौफीक दे। मैं फिर से हम लोग जब जामिया इस्लामिया में थे तो एक शेख बड़े मशहूर दाई हैं, बहरहाल उससे उनके वजह से काम भी काफ़ी हुआ है, तो वो कहे थे, तो बच्चों ने प्रोग्राम किया, तो किसी ने कह दिया कि शेख साहब आपके लहजे में सख्ती बहुत ज़्यादा है, तो कहने लगे आप बर्फ़ी का डब्बा लेकर के जाओ, हम ऐसे पंचरी चलाएंगे, ठीक है, हम ऐसे पंचरी चलाएंगे, तू बर्फ़ी का डब्बा लेके जाओ, हम पंचरी चलेंगे। तो जबकि शेख कुरान मजीद की वायद उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, यार हाँ मौइज़ा हसना होना चाहिए। जी। तो
ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہے کہیں سختی اللہ کے رسول نے بھی کی ہے وہ کریں آپ, لیکن یہ ہے کہ آپ کے پروگراموں میں دلیلوں سے زیادہ طنز ہوں تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے. اچھا میں یعنی جہاں اللہ کے حرمات ہاں کی پامالی ہو رہی ہے آپ نے غصہ کیا ہے, اچھا، جہاں پہ اچھا۔ کھلم کھلا وہ چیزیں مخالفت ہو رہی ہیں, لیکن ایک آدمی جو تھوڑا حق سے پھرا ہوا ہے وہ انجانے میں سمجھیے نا جہالت کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہے, غلط اور ہم فہمی، جانتے ہیں مس غلط فہمی, انڈرسٹینڈنگ، ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پاس صحیح تعلیم علم نہیں ہے, غلط رہنمائی کی گئی, غلط رہنمائی کی گئی ہے, تو وہاں پہ اگر ہم غصہ کا پہلو اختیار کریں گے وہ متنفر ہو جائے گا. متنفر ہوگا اور ہمارے قریب نہیں آئے گا. شیخ یہی ایک بات ہے میرا خیال ہے یہ اسی سے جڑی ہوئی بات ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دعات کو نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے, بلکہ حد تک امکان. ان لوگوں کے لیے اس کو ایڈ کیجیے کہ جو غلط راستے پر ہیں, جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں, یا جن کو صحیح علم ان تک پہنچا نہیں ہے یا وہ جانتے نہیں, جی البتہ اس میں ہمیں فرق کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ ہر جگہ ہے آپ ہو رہے ہیں. جی میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کسی بھی مان لیجیے کسی بھی داعی نے یا کسی بھی مبلغ نے کسی بھی دعوت دینے والے نے اگر خدا نخواستہ مان لو اس کا لہجہ سخت ہے, لیکن اگر وہ بات کتاب و سنت کے دائرے میں کر رہا ہے تو میں سننے والوں کو مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہوں مسجد میں مطلب ایک گزارش کہ جس طرح سے ایک دائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لہجے میں نرمی معدت اور حسنہ اور ساری چیزیں خدمت کے ساتھ گفتگو کرے, لیکن خدا نخواستہ اگر مان لیجیے کوئی اپنے طبیعت کا سخت ہے اور وہ بات کتاب و سنت کے دائرے میں کر رہا ہے تو سامعین سے گزارش ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کتاب و سنت کی چونکہ بات ہے تو اس کو صبر کر کے بالکل سنیں اس کو اور اس کی سختی کو بھلا کر کے اس بات پر توجہ دیں اور بعد میں اس کو سوچیں, آگے اس کی تحقیق کریں اور دیگر لوگوں سے پوچھیں اس میں بات سچائی بات حقیقت ہے تو ٹھیک ہے, چلو بات ہو کر سچی آئی تو اس کو مان لیجیے. مان لیجیے بات اس کی سختی اس کی سختی اس کے ساتھ ہے, آپ کو ایک حق مل گیا آپ کو نہیں, بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ہم اس سے متفق ہیں آپ کی بات سے, لیکن ہمیں دیکھیے ایک داعی جو ہے نا, داعی اسی وقت کامیاب ہوگا جب تک آپ مدعو کے بارے میں نہیں جانیں گے. ضروری مخاطب دعوت میں یہ بہت پوائنٹ کی چیز ہے, چاہے وہ غیر مسلموں کی دعوت ہو یا آپ مسلمانوں میں دعوت کا کام کر رہے ہوں, جو ہمارے بھائی جو تھوڑا بھٹکے ہوئے لوگ ہیں یا گمراہی کی طرف ہیں, مدعو کی حالات ان کی نفسیات کو آپ کو پرکھنا ہوگا, وہ کس مزاج کے لوگ ہیں, کون سی بات آپ کو پسند کریں گے یا کون سا اسلوب آپ کا پسند کریں گے. ٹھیک ہے نا, کہ جب تک ہم مدعو کے حالات کو نہیں سمجھیں گے جن کو آپ دعوت دیتے ہیں اس وقت تک ہماری دعوت کامیاب نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے ہمیں ایسے علاقوں کا, ایسے گاؤں حالات معاملات کا پتہ بھی رکھنا ہوگا کہ آپ وہاں بولیں گے کس انداز میں, سمجھ رہے ہیں نا. ہو سکتا ہے وہ لوگ غصہ نہ پسند, حق بات آپ سنا رہے ہیں لیکن اس کو نہیں پسند ہے, آپ کا اسلوب نہیں پسند ہے, تو ظاہر سی بات اس کے دل میں نفرت ہوگی. تو ان کے نفسیات اور ان کے مزاج کو پرکھنا بھی بہت ضروری ہے. شیخ اگر ٹائم ہے تو میں ایک بار اور ہاں ضرور رکھتے ہیں, بدعات کے حوالے سے ضرور رکھتے ہیں. جشن میلاد کے حوالے سے یا دیگر بدعات جو پائی جاتی ہیں جیسے اسراء اور معراج ہے اور یہ شابان کے حلوہ وغیرہ کے یعنی ساری بدعات کے حوالے سے, جسے عام طور پر کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آخر میں جو لوگ عید میلاد منانے کی بات کرتے ہیں یا اسراء معراج کی بات ہے یا دیگر جو محفلیں یا مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اس سلسلے میں ان کے پاس قرآن کی دلیلیں ہوتی ہیں, قرآن کی دلیلیں ہوتی ہیں, احادیث مصطفیٰ ہوتی ہیں, مختلف علماء کے اقوال ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سلسلے میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دلیل جو ہوتی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں, وہ قرآن کی دلیل پیش کرتے ہیں, احادیث مصطفیٰ پیش کرتے ہیں. میں آپ کو ایک دو مثال دینا چاہتا ہوں, اس مثال سے شاید سمجھنے میں بات آسانی ہے. جیسے شیعہ حضرات ہیں, وہ لوگ بھی ابو بکر, عمر, عثمان اور دیگر کچھ صحابہ کو گالی دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, کام و تسلیم کرتے ہیں. ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں قرآن کی اور حدیثوں کی, جی ہے نا. بالکل. اسی طرح سے آپ دیکھیں ہمارے اور بھی بہت سارے بھائی ہیں جن کے پاس قرآن و حدیث کے دلائل ہوتے ہیں لیکن وہ کتاب و سنت کے سراسر خلاف ہوتی ہیں. تو اگر کتاب و سنت سے کسی چیز کا دلیل کا پیش کر دینا یہی کافی ہوتا تو پھر ایسے موقع پر گویا کہ شیعہ حضرات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص صحابہ کو گالیاں دینا, برا بھلا کہنا گویا کہ ان کا یہ حق ہے اور جائز ہے, مناسب ہے. حالانکہ ہم نے کا ادنا درجے کا مسلمان بھی اس بات کو نہیں مانتا, اگرچہ وہ قرآن کی دلیل پیش کرتے ہیں, حدیث مصطفیٰ پیش کرتے ہیں. تو قرآن کی دلیل پیش کرنا اور حدیث مصطفیٰ کا پیش کرنا یہ ہم نہیں مانتے ہیں, جبکہ وہ قرآن و حدیث کی دلیل پیش کرتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے
کہ کیا نام ہے فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. تو اب قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے پسند کی شادیاں کرو 2 2 3 3 4 4. اب کوئی منچلا اٹھے اور کہے کہ 18 شادیاں کرنا جائے گا، قرآن سے ثابت ہے. 2 2 کو طرف دے دے 2 2 4 یہ ہو گئی، اور 3 3 6 6 4 10 ہو گئی، اور 4 4 8 یہ ہو گئی. تو 6 4 اور 3 6 اور 8 اور 4 کتنے ہو گئی؟ 18 ہو گئی. اب گویا کہ وہ ایک آدمی آئے اور کہے کہ قرآن سے 18 شادیاں کرنا ایک مسلمان کے لیے بیعت جائز ہے، تو کیا آپ اس کو مانیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں مانیں گے. ہم کہیں گے کیوں نہیں مانو گے جبکہ آپ کہتے ہو کہ اس کے سامنے قرآن کی دلیل ہے. تو قرآن کی دلیل کا صرف پیش کر دینا کافی نہیں ہے. اس دلیل کا اس دلیل کے لیے ضروری ہے کہ مفسرین نے، یا بلکہ اس سے پہلے آپ کہہ لیں کہ صحابہ کرام نے بھی دلیل کو اس جگہ پر پھر مانا ہو. جیسے قرآن میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے عمل کو، صحابہ کرام کے طرز کو، ان کے منہج کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ مانا ہے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی جو مخالفت کریں گے دین کی وضاحت کے ہو جانے کے باوجود، اور غیر مومنین کی جو اتباع کریں گے، اور یہاں مومنین سے مراد صحابہ کرام دنیا جانتی ہے، تو صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ کر کے اگر آپ الگ سے کوئی منہج پیش کریں گے، اگرچہ قرآن کے دلیل پیش کریں، تو وہ قابل قبول نہیں مانی جائے گی، جیسا کہ میں نے 2 مثالیں دی ہے. شیخ صاحب میرے خیال میں مختصر کریں، اور آخری بات آپ دونوں میں سے کوئی بھی خلاصہ بتا. یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے دلیل صرف پیش کر دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس دلیل کا صحابہ کرام کے ہاں پایا جانا بھی ضروری ہے. اور ویسے بھی آپ سوچیں کہ اگر یہ حدیث ہے یا قرآن ظاہر سی بات ہے پہلے صحابہ کے پاس پہنچی ہوں گی، تو صحابہ نے اس قرآن کی آیت سے یا اس حدیث مصطفیٰ سے یہ چیز سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ اگر سمجھی تو پورا تاریخ بیان کرتی اور کتابوں موجود ہوتا. تو وہ موجود کرنا ہونا ان کا نہ سمجھنا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ دلیل اس جگہ فٹ نہیں ہو سکتی. اچھا آخری بات کہہ کر شیخ میرے خیال سے ختم کیا جائے، کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے. یہ آج کل جو ہے جیسے قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں یا جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ چیز مطلوب ہے کہ اللہ کے رسول سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. صحیح ہے. اور اللہ کے رسول کی بہت ساری حدیثیں آپ دیکھ لیں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے اور چل رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ میرے نزدیک بہت زیادہ محبوب میری جان کے علاوہ. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ نہیں، ابھی تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو جب بھی آپ پڑھیں گے تو خوب محبت اس ساری باتیں کی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل سے کہا تو کیا کہا تھا؟ انی احبک فی اللہ. لیکن آج کل دیکھ رہے ہیں آپ شاید چاہے وہ شعراء ہوں یا عام جو ان کے مقررین ہیں، وہ جو مبلغین ہیں، وہ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، جیسے محبت رسول پہ بات کریں گے تو محبت سے ہٹ کر کے وہ عشق اور عاشقی اور یہ ساری چیزیں باتیں کرنے لگتے ہیں. تو کیا یہ سارے کلمات عشق اور عاشقی اور عاشق، کیا یہ کہنا ہمارے لیے زیبا دیتا ہے کہ مناسب ہے؟ یہ نہیں، اور شیخ یہاں بہت نقطے کی بات ہے جی کہ آپ عشق اور محبت دونوں دو چیزیں. دونوں تو چیزیں محبت جو ہے نا ایک مطلب فطری اور طبعی چیز ہے. ایک فطری چیز ہوتی ہے. اور عشق جو ہے آپ دیکھیں علامہ اس میں شرح عقیدہ طحاویہ میں بڑی اچھی بحث کیا ہے اس کو انہوں نے، امام طحاوی نے، اس میں آپ دیکھیں تو وہاں عشق جو ہے کہ جو بات بتائی کہ وہ عشق مع شہوہ، عشق کے اندر ایک شہوانی کیفیت ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے عاشقوں کو وہ محبت کرنے والا کوئی نہیں لکھتا ہے نا، وہ عاشق لکھیں گے، ان کو معشوقہ لکھیں گے. تو عشق میں جو ہے شہوت کا دخل ہوتا ہے. اور یہ جملہ نہ تو اللہ کے لیے استعمال کرنا صحیح ہے کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں. عام لوگوں کے لیے بھی جو ہے کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے بھی یہاں نہیں تک کہ شیخ دیکھیں یہ عام طور سے جو ہے یہ مطلب وہ لوگ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں جو اس کو عاشقی والے جو اپنا استعمال کرتے ہیں، بہت سے شعراء ہیں جو دینی شعراء کی بات میں نے کر رہا ہوں، تو یہ سب جو ہے استعمال کرتے ہیں اپنے محبوبہ کی تعریف اور ساری چیزیں. میرے دوستو اور دوسری چیز شیخ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی بھی یہ کہنا جائز اور درست نہیں ہے کہ ہم عاشقان رسول ہیں، ہے نا، یا ہم اللہ کا رسول کے عشق کرتے ہیں، ہم عشق کرتے ہیں. یہ میرے دوستو غلط ہے اور کبھی بھی اس جملے کو آپ استعمال نہ کریں، جائز نہیں ہے، حرام ہے. شیخ وہ بات جو جیسے مثال کے طور پہ ہم اپنے، کیا آپ اپنے بیوی سے کہہ سکتے ہیں مجھے آپ سے عشق ہے؟ بیٹی سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ اپنی ماں سے کوئی کہے گا؟ نہیں کہہ سکتا ہے. ہم نے، لیکن ہم اعلان کہہ سکتے ہیں میری بیٹی سے مجھے محبت ہے، میں اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں.
یہ چیز ہر ایک کے لیے، لیکن جو چیز ہم اپنے خاص یعنی ادنا لوگوں کے لیے ہم نہیں استعمال کر سکتے ہیں، کیسے ہماری ضمیر گوارا کریں ہم اللہ کے رسولوں کے لیے استعمال کریں؟ تو بالکل اس سے اجتناب کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. اگر کوئی اپنی بیٹی سے کہے میں تم سے عشق کرتا ہوں، تب سوچو آپ سوچیے مطلب کتنی بڑی بات ہو جائے گی وہ. سماج اور معاشرہ اس کا بائیکاٹ کر دے گا. اس کا یہ جو ہے ہے کہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس میں عوام کو آپ کیسے قصوروار ٹھہرائیں گے؟ ان کے جو علماء ہیں وہ خود استعمال کر رہے ہیں صحیح ہے. اور اپنی لچھے دار تقریروں میں سنیے ان کے نا معاشقان رسول ہاں ہے نا اس پہ نعرہ لگتا ہے. نعرہ لگتا ہے عاشق مصطفیٰ اعوذ باللہ من ذالک. میرے عزیز بھائیوں یہ سب جملے مت استعمال کرو. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پہ ہیں اسی مقام پہ رہنے دو، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے بھلائی ہے. وہی لفظ استعمال کریں جو وہی لفظ استعمال جو کرو. اللہ اس کے محبت کا رسول نے لفظ ہے. ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. ہمیں محبت ہمارے دلوں میں ان کی، اور سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے ان کی. سارے لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے. ضروری ہے. بیوی بچہ ماں باپ بیٹا بیٹی رشتے دار سب سے، تبھی جو ہے آپ سچے اور کامل مومن ہوں گے. اچھا بس دو لفظوں میں دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ جو وہی الفاظ استعمال کریں جو اللہ اس کے رسول نے استعمال کی، سے محبت کا لفظ ہے. جی جی. یہاں کچھ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے شبہ کہ بہت سارے علماء نے بھی اس کو استعمال کیا ہے. اچھا ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ عشق کا لفظ چونکہ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، اگرچہ علماء نے استعمال کیا ہے، اگرچہ علماء نے استعمال کیا، تو چونکہ ہاں وہی کہہ رہا ہوں کہ علماء ہمارے دلیل نہیں ہے. بھول ہوا بولو ان بس. سے اگر انہوں نے استعمال کیا ہے تو ٹھیک ہے، استعمال انہوں نے کر لیا تو ہم اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے. لیکن البتہ یہ ہے کہ ہم جب جان گئے ہیں ہاں. کہ یہ لفظ مناسب نہیں، کم سے کم اگر ہلکا حکم لگائیں تو یہ ہوا کہ یہ لفظ مناسب نہیں لگتا، تو کم سے کم مناسب مناسب نہ کہیں شیخ، کہیں جائز ہی نہیں ہے. نہیں، میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ مان لیتے ہیں کہ یہ لفظ محبت ہی اصل ہے اور عشق کا لفظ مناسب نہیں لگتا، مان لیتے ہیں سمجھانے کے لیے. تو جب آپ کے سامنے اس کا ایک بدل موجود ہے، ایک اچھا لفظ محبت بھرا لفظ محبت موجود ہے اور ثابت ہے وہی قرآن حدیث میں. آپ وہ لفظ کیوں استعمال کریں گے جو اچھا نہیں لگتا؟ اچھا نہیں لگتا. تو آپ عشق کا لفظ نہ استعمال کر کے محبت کا لفظ استعمال کریں. اب محب رسول کہیں، محب مصطفیٰ کہیں، محبان مصطفیٰ، محبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو علماء ہمارے لیے دلیل نہیں، دلیل ہمارے لیے کتاب و سنت ہے. اگر علماء سے کچھ سہو ہو جائے تو ٹھیک ہے، ان کے سہو کو چھوڑ کر علماء کی محبت سرا ہو جائے. ہمارے کچھ اللہ نے سمجھ کی شعراء نے بھی اس کا لفظ استعمال کیا ہے. جیسے ایک شعر میں پڑھتا تھا، عشق ہم نے کیا ہے بہت سوچ کر، میں نے اسے محبت میں بدل دیا. جب میرے سامنے وہ چیز آئی میں نے کہا حب ہم نے کیا ہے بہت سوچ کر، ہم نہیں چاہتے ادا. بالکل بالکل بالکل. ہے نا؟ لکھتے لکھتے کبھی شعراء سے بھی ایسی تساہلیں، ایسی مطلب چیزیں ہو گئی ہیں تو ہمارے لیے دلیل نہیں. عوام اس چیز کو کوٹ کرتی ہے، کوٹ کرتی ہے کہ ہمارے شاعر نے بھی لکھا ہے، تمہارے عالم نے بھی لکھا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے عالم ہو یا کسی کا عالم ہو، اگر ان سے کچھ سو ہو گیا ہو یا کسی غیر یا زیادہ اچھی چیز کو انہوں نے استعمال کیا تو آپ کے سامنے زیادہ اچھی چیز موجود ہے تو کم اچھی کو کیوں لیں گے؟ مطلب یہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے ضعیف موضوع روایتیں ہیں، اتنی تحقیق نہیں تھی پہلے. بہت سارے لوگوں نے ضعیف موضوع روایتیں بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے نا. اس کا مطلب نہیں نہیں تو اس پر کام کر رہے ہیں، تخریج کر رہے ہیں آج کر کے مشاہد. تحقیق ہو رہی ہے تو لوگ اس کو اپنی کتابوں سے نکال رہے ہیں، کم سے کم اس میں نوٹ میں لکھتے ہیں کہ موضوع روایت ہے. اور یہی میرے دوست، یہی کیا ہے کہ ایک آدمی ایک سچے مومن کا معیار، اس کی ذمہ داری ہے یہ کہ آپ کے عالم نے بھی اگر غلط لکھا ہے تو آپ اس کو کہیے کہ غلط ہے. ہاں شیخ کوئی بھی ہو. افسوس ہے میرے شیخ کہ آج بہت ساری عوام اپنے جس کی عقیدت میں اندھے ہیں وہ ان کے خلاف ایک لفظ بولنا گوارا نہیں کرتے. بولنا کیا، سننا گوارا نہیں کرتے. پتھر کی لکیر ہو گئی. اور ہمارا جو منہج ہے میرے دوستو، ہم جو اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے، جو صحیح طریقے سے کتاب و سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہے نا، ان کا جو منہج ہے، میں نہیں کہتا کہ ہم اہل حدیثوں کا، میں کہتا ہوں اہل سنت والجماعت، قرآن و سنت پہ چلنے والے لوگ. حقیقت ہے کہ وہ اہل حدیث جماعت ہی ہے جو صحیح طریقے سے جو ہے کتاب و سنت کو فالو کرتی ہے. ہمارا منہج یہی ہے کہ ہمارا کوئی بھی بڑا سے بڑا عالم اگر اس کی تحریروں میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز، کوئی جملہ ہے تو ہم اس کی نکیر کرتے ہیں، اس پہ رد کرتے ہیں، اور ہمارے علماء بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس چیز کو وہ قبول کرتے ہیں. یہ مزاج ہونا چاہیے. اور عقیدت محبت سے رکھو. عقیدت و محبت سے رکھو. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. شکریہ ادا کریں ہمارے ناظرین کا. آپ سارے لوگوں کا جزاکم اللہ خیر. میں سارے لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. شیخ پرویز عالم مدنی حفظ اللہ کی طرف سے بھی، ہمارے شیخ حافظ مطیع اللہ سلفی حفظ اللہ کی طرف سے، اور اپنے طرف سے بھی میں کہ آپ لوگوں نے اپنا ٹائم دیا. میں نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے احباب انڈیا، نیپال اور سعودی عرب سے کچھ جڑے ہوئے ہیں. آپ اس کو نشر کریں
اور یہ اس پروگرام کو آپ اس کو شیئر کریے، ज़्यादा से ज़्यादा زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اس کو. صرف ایک ریکویسٹ بڑی ہے یہ. مفید باتیں ہیں، بڑی ایک نصیحتی باتیں ہوئی ہیں، شاید کو جائے کسی دل میں. شاید کہ اتر جائے کسی دل میں. انداز بیاں غرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. تو اس نظریے سے اس کو آپ لوگ شیئر کریں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ صحیح طریقے سے جو ہے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، کتاب و سنت پہ چلنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے فالو کریں. آپ جو آپ کا صحیح جو منہج طریقہ ہے، جو آپ کی سنتیں ہیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں، اس پہ آپ عمل کریں. وہی ہمارے لیے باعث خیر ہوں گی اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گی. بدعتوں سے، خرافات سے، گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایسی مجلسوں کا بائیکاٹ کریں. ایسی میلاد کا، ایسے اجتماعات سے دور رہیں. نہ خود جائیں، نہ بچوں کو لے جائیں، اور اپنے آپ کو ایسی کسی بھی شرکت سے جگہوں دور سے رکھیں. ہاں. جہاں بھی اللہ کے دین کی مخالفت ہو رہی ہو، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، ہے نا، رسول کی عزت و آبرو پہ حملہ ہوتا ہو، ان کی عزت و آبرو کو پامال کرنے کی کوشش کی جاتی ہو، جس بھی طریقے سے ایسی جگہوں سے ہمیں دور رہنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین جو رب ہمارے العالمین. بھائی دین سے دور ہیں، جو گمراہیوں میں ہیں، بدعتوں میں ہیں، رب العالمین انہیں ہدایت دے، انہیں صحیح سمجھ دے اور انہیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام.